Hello students. The topic today we are going to cover is methods of measuring price elasticity of demand. Under price elasticity of demand, there are three methods. First is ratio method, जिसका दूसरा नाम है percentage method. Second is total expenditure method. Third is point method, and the other name for the point method is geometric method. Our first point is ratio method, and other names for these are percentage method and arithmetic method. First of all, it's very important to know that ratio method was developed by Professor Alfred Marshall. According to this method, elasticity का मतलब है dividing the percentage change in demand by the percentage change in price. जैसे कि आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. So it is written over here is elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in demand by percentage change in price. Formula, same formula. Elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. So elasticity of demand is equal to percentage change का sign triangle है Q divided by percentage change of price. So mathematically, when you will solve the formula, you will get elasticity of demand is equal to change in Q upon original quantity demanded divided by change in price upon original price. Therefore, elasticity of demand is equal to change in quantity demanded upon original quantity multiplied by ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस. तो इसी फॉर्मूला को लगाकर आपने सम्स सॉल्व करने हैं अगर आपको सम्स दिए हों. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन चेंज इन पी. Our second method is a total expenditure method, and this method is also developed by Professor Alfred Marshall. सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मेथड के लिए याद रखना कि इस मेथड में हम टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर को देखेंगे. सिर्फ एक्सपेंडिचर बड़ा है या कम हुआ है प्राइस चेंज होने के बाद, उसे कंपेयर करेंगे विद द ओरिजिनल प्राइस या विद द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर. So in this method, total amount of expenditure before and after the price change is compared. Total expenditure refers to the price of the product and quantity demanded. So you can say total expenditure is equal to price into quantity demanded. So आपको ध्यान में रखना है total expenditure कैसे निकलेगा. total expenditure निकालने का फॉर्मूला ये है कि price और quantity demanded को मल्टीप्लाई किया जाएगा. अभी ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के लिए प्रोपोजिशंस दिए हैं अल्फ्रेड मार्शल ने. तीन तरह के होते हैं. पहला है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इसका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का आपको एक्सप्लेनेशन पीछे दिया गया है लास्ट लेक्चर में. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर इज ग्रेटर देन 1. Unitary elastic demand where elasticity of demand equals to 1, and relatively inelastic demand where elasticity of demand is less than 1. वो देखते हैं किस तरह से. अभी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड आप किसे कहेंगे? व्हेन विद गिवन चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज हुआ उसकी वजह से अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, टोटल एक्सपेंडिचर का कॉलम में एक्सपेंडिचर टोटल बढ़ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स प्राइस चेंज होने की वजह से अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बड़ा है तो उसे कहेंगे आप रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब, यूनिटरी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इक्वल्स टू 1 आ जाता है. वो किस तरह से? व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस, टोटल आउटले डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट. सो यू मस्ट रिमेंबर कि रिमेन कांस्टेंट मीन्स जो आपका प्राइस चेंज होने से पहले खर्चा था वही आपका प्राइस चेंज होने के बाद का खर्चा है. अगर दोनों खर्चा सेम हो जाते हैं तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. Relatively inelastic demand, when the given change in price of a commodity, total outlay decreases.
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी कि जो खर्चा आप प्राइस चेंज होने के पहले कर रहे थे और प्राइस चेंज होने के बाद आपने उसके ऊपर खर्चा कम कर दिया है, तो इसे कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल. In this table, as you can see, price are given and the table has been divided into 3 major columns, that is A, B and C. Here, quantity demanded is given in units, total outlay is given, and then we have measured elasticity of demand. In your A column, original price is 10 rupees. As you can see, original price is 10 rupees and at 10 rupee you were demanding the commodities or units equals to 6. That means 6 चीज़ें आप खरीदते थे जब भाव 10 रुपये था, तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 60 रुपया. 10 into 6 is 60. अभी वही प्राइस आपका बढ़ गया है, 10 रुपीज़ की बजाय 20 रुपीज़ हो गया है. प्राइस बढ़ने से आपने क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर दिया? अभी 5. 6 जहां खरीदते थे अभी 5 खरीदी हैं, लेकिन हमने इस कॉलम को नहीं देखना, हमने आगे वाले कॉलम को देखना है. 20 into 5 100 रुपीज़. दैट मीन्स आप पहले 60 रुपीज़ खर्च करते थे और अभी आप 100 रुपीज़ खर्च कर रहे हो. वापस बोल रही हूँ, आपने क्वांटिटी डिमांडेड को नहीं देखना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे मेथड का नाम है टोटल आउटले मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड. तो हमने सिर्फ आउटले के कॉलम को देखना है. पहले 60 रुपीज़ खर्च करते थे, अभी 100 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है. सो यहाँ पर ये प्रूव होता है कि ए कॉलम के अकॉर्डिंगली आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थी. अभी आते हैं बी एग्जाम्पल पे. इन एग्जाम्पल बी आपका ओरिजिनल प्राइस जो बताया गया वो 30 रुपीज़ था. 30 रुपीज़ के ऊपर आप 4 कमोडिटीज़ को परचेज करते थे. दैट मीन्स 30 into 4 is 120. आप 120 रुपया खर्च करते थे जब प्राइस 30 रुपये था. अभी प्राइस बढ़कर 40 रुपीज़ हो गया है, तो अभी आप जो कमोडिटीज़ खरीद रहे हो वो 3 खरीद रहे हो. लेकिन वंस अगेन आई एम टेलिंग, हमने ये कॉलम को नहीं देखना है. हमने क्या देखना है? खर्चे वाला कॉलम, टोटल आउटले वाला कॉलम. टोटल आउटले के कॉलम में दोनों में ही 120 रुपीज़ और 120 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है. जब 30 रुपीज़ प्राइस था तब भी आप 120 रुपीज़ खर्च कर रहे थे, और जब 40 रुपीज़ प्राइस आया तब भी आप 120 रुपीज़ खर्च कर रहे थे. यानी कि आपके खर्चे में कोई भी चेंज नहीं आया है, कोई भी बदलाव नहीं दिखा रहा है यहाँ पर. सो यहाँ आप मानेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. अभी एग्जाम्पल नंबर सी लेते हैं. 50 रुपीज़ जब प्राइस था तो आप 2 यूनिट्स खरीदते थे और खर्चा करते थे 100 रुपीज़. जब प्राइस बढ़कर 60 रुपीज़ हुआ तो आपने एक ही यूनिट खरीदी और खर्चा किया 60 रुपीज़. यानी कि पहले आपका खर्चा था 100 रुपीज़, फिर आपका खर्चा हो गया 60 रुपीज़. दैट मीन्स आपका खर्चा कम हुआ, आपने कम पैसा लगाया उस प्रोडक्ट के ऊपर. दैट मीन्स हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. सो अगेन ए बी सी जो 3 कॉलम हैं आपके, वहाँ पर आप सिर्फ टोटल आउटले का कॉलम देख के बता पाएंगे कि इलास्टिसिटी कितनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए कॉलम देखते हो तो वहाँ पर आपका खर्चा पहले 60 रुपीज़ था और अभी 100 रुपीज़ है. 10 रुपये के भाव पे 60 था, 20 रुपीज़ के भाव पे 100 हो गया. दैट मीन्स खर्चा बढ़ाना पड़ गया आपको. तो यहाँ आप इसे कहेंगे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. बी कॉलम में आपका प्राइस 30 रुपीज़ था जब प्रोडक्ट का, तो आप 120 रुपीज़ खर्च करते थे. देन उसका प्राइस बढ़कर 40 रुपीज़ हो गया तो आप अगेन 120 रुपीज़ ही खर्च कर रहे हैं. तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 आ गई, क्योंकि 120 और 120 आप जब देख रहे हैं खर्चे में कोई चेंज नहीं है, तो आप कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1. इसी तरह आपका सी कॉलम आया और सी कॉलम में आपने देखा जब प्राइस 50 रुपीज़ था तो आप 100 रुपीज़ खर्च कर रहे थे, और जब प्राइस 60 रुपीज़ हो गया तो आपने सिर्फ 60 रुपीज़ खर्च किए. सो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 हो गई, क्योंकि आपने खर्चे को कम कर दिया है.
इसी का एक्सप्लेनेशन आपके ए, अगर पर्टिकुलर ए कॉलम पे जाते हैं तो ए ओरिजिनल, इन कॉलम ए ओरिजिनल प्राइस वाज ₹10 per unit and quantity demanded is 6 units. Therefore, the total expenditure incurred is ₹60. When price rises to ₹20, quantity demanded falls to 5 units and total expenditure incurred is ₹100. So in this case, total outlay is greater than original expenditure. Hence, in this example, elasticity of demand is greater than 1, and that is called relatively elastic demand. In column B, original price was ₹30 per units, और जो टेबल आप देख रहे हैं, quantity demanded was 4 units. Therefore, total expenditure was ₹120. When price rise from to ₹40, quantity demanded falls to 3 units. So total expenditure incurred is ₹120. In this case, total outlay is same to original expenditure. Hence, यहाँ पर elasticity आ गई थी आपकी equals to 1. In the same way, C column के हिसाब से original price was ₹50 per unit, quantity demanded was 2 units, and therefore total expenditure was ₹100. When price rise to ₹60, quantity demanded was falling to 1 unit and total expenditure incurred is ₹60. So in this case, total outlay is less than total expenditure, yeah, original expenditure. Hence, elasticity of demand is less than 1, and this is called relatively inelastic demand. So under total expenditure, we covered 3 points: relatively elastic demand, unitary elastic demand, and relatively inelastic demand. Third point or geometric method. Once again, इसे भी एल्फ्रेड मार्शल ने ही डेवलप किया है. अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्रिक मेथड कैसे लिया जाता है? आपको एक फॉर्मूला लगाना है, याद रखना है कि जब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करना है तो फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट ऑफ डीडी कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डीडी कर्व. सो यू मस्ट रिमेंबर, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट ऑफ डीडी कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डीडी कर्व. सो point or geometric method was developed by Professor Alfred Marshall. At any point of time on the demand curve, elasticity of demand is measured with the help of this following formula, and that is point elasticity of demand is equal to lower segment of DD curve divided by upper segment of DD curve. देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. अभी आपका जो डिमांड कर्व है दो तरह का हो सकता है, एक लीनियर डिमांड कर्व और दूसरा नॉन लीनियर डिमांड कर्व. पहले यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है लीनियर डिमांड कर्व. अभी ये लीनियर डिमांड कर्व कैसे बना हुआ है? जो डी लाइन आप प्लॉट करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको हमने इंक्रीज करके वी हैव मेक हिम मेट विद द ओवा एक्सिस ऑल्सो एंड एक्स एक्सिस ऑल्सो. सो ये किस तरह का फॉर्म हुआ? व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, we extend the demand curve to meet the y-axis at point A and x-axis at point B. यानी कि आपने अपने डी कर्व को बढ़ाया है y साइड पे टच किया है, OY साइड पे वो A पॉइंट पे इस फिगर के हिसाब से टच हुआ और x एक्सिस पे वो B पॉइंट पर टच हुआ है. So point elasticity of demand at x-axis is 0 and at y-axis is infinite. अभी ये किस तरह से किया जाएगा? लेट अस हैव द एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ वन एज्यूम्ड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ये एज्यूम करना है कि जो आपके पास ए बी लाइन है या ए बी डिमांड कर्व भी आप वर्ड यूज कर सकते हो या डी डी भी यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू. सो एज पर दिस फिगर ए बी इज एज्यूम्ड, सो आई विल टेक दैट ए बी डिमांड कर्व इज हैविंग द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर. सो आपने ये एज्यूम किया कि ये जो ए बी लाइन है डी डी कर्व की ये 8 सेंटीमीटर लंबी है. अभी देखते हैं अलग अलग पॉइंट पे हम किस तरह से इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे. पी पॉइंट आपको सेंटर में दिख रहा है, बिल्कुल ए बी लाइन के हाफ कर रहा है ये इसे. अभी पूरी लाइन आप अगर इसे 8 सेंटीमीटर मान रहे हैं और पी पॉइंट के ऊपर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है? पीछे आपको एक्सप्लेन किया मैंने.
फॉर्मूला ये है कि P पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डीडी कर्व। अभी लोअर सेगमेंट डीडी कर्व का क्या बन रहा है? P पॉइंट पे अगर आप हैं तो आपका लोअर सेगमेंट का पार्ट बनता है PB। देखो PB एरिया आपका लोअर सेगमेंट और अपर एरिया क्या बनेगा? PA। क्योंकि ये एग्जैक्टली मिड में है तो पूरे 8 सेंटीमीटर की लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो रही है अगर, तो PB 4 सेंटीमीटर है और PA भी 4 सेंटीमीटर है। सो व्हेन यू विल डिवाइड 4 by 4 इट विल बी इक्वल टू 1। इसीलिए यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 दी गई है। Thus at point P the demand is unitary elastic demand. सो यहाँ ED इक्वल्स टू 1 कैसे आया है? आपको क्लियर हो गया है कि 8 सेंटीमीटर की लाइन आप मान रहे हैं AB को, और जब आप PB मेजर करते हैं तो वो 4 सेंटीमीटर है और PA मेजर करते हैं तो वो भी 4 सेंटीमीटर है। और एज पर द फॉर्मूला पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू L upon U, that is lower segment divided by upper segment, which is 4 upon 4 and which becomes equal to 1. अभी हम सेकेंड P1 पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। एट पॉइंट P1 द इलास्टिसिटी विल बी P1B divided by P1A. That means lower segment divided by upper segment. So P1B equals to 2 and P1A is equal to 6. So 2 upon 6 जब आप इसे सॉल्व करेंगे it will be 0.33। अभी 0.33 1 से छोटा है, इसीलिए आप इसे कहेंगे यहाँ पर आपका इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है। आप आगे देख भी सकते हैं, आपको एग्जाम्पल क्लियर की गई है। लेट अस अज्यूम दैट AB इज अ डिमांड कर्व एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। Point elasticity at various points on a linear demand curve can be measured with the help of following formula या with the help of these statements. At point P जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, point elasticity of demand is measured at P is equal to PB upon PA which is equal to 4 upon 4 equals to 1. इसी तरह आपने जब एट पॉइंट P1 लिया तो पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर एट P1 इज इक्वल टू P1B अपॉन P1A विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 6, और जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 0.33 विच इज लेस देन 1। सिमिलरली आप जब पॉइंट P2 लेते हैं तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से मेजर करते हैं? एट पॉइंट P2 इलास्टिसिटी इज इक्वल टू P2B अपॉन P2A। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप P2 पे ले रहे हैं तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट लेंगे तो इट विल बी P2B अपॉन P2A। अभी P2B and P2A obviously equal to 6 upon 2 and when you will divide 6 upon 2 you will get 3. So which is greater than 1. So यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो greater than 1 आएगी जिसे आप relatively elastic demand कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ सोल्यूशन थर्ड पॉइंट का। एट पॉइंट P2 द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट P2 इज इक्वल टू P2B अपॉन P2A विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। Thus at point P2 demand is relatively elastic. Here elasticity of demand is greater than 1. So at point A now point elasticity is infinite because upper segment is 0 and 0 divided by anything is equal to infinite. At point B, the point elasticity is 0 because lower segment is 0 and any number divided by 0 equals to 0. So this is for our linear demand curve. अभी हमारा सेकेंड पॉइंट आता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। When the demand curve is non-linear यानी कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, तो आप कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं? इसे मेजर करने के लिए हमें एक टेंजेंट प्लॉट करना पड़ेगा विच विल टच द डिमांड कर्व। यानी कि यहाँ पर दिखाया गया एक टेंजेंट आपने प्लॉट किया है जो E पॉइंट पर टच कर रहा है DD डिमांड कर्व को। जब आपने इस टेंजेंट को प्लॉट किया
इसने ओ वाई एक्सिस पर इसे ए पॉइंट पे टच किया है और ओ एक्स एक्सिस पे बी पॉइंट पे टच किया है, यानी कि आपने अपनी टेंजेंट को एक्सटेंड किया है ए पॉइंट तक और बी पॉइंट तक, और फिर वही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिलो एट अ गिवन पॉइंट एंड अपर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट अबव अ गिवन पॉइंट, दैट इज इक्वल्स टू एल अपॉन यू। सो जब आप पॉइंट मेथड से निकाल रहे हैं, अगेन वही फॉर्मूला लगाते हैं, अगर आप लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, और अगर कहीं आपका ई बी इक्वल्स टू ई ए आ जाता है तो आप कहेंगे इट इज़ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर ई बी ग्रेटर देन ई ए आ जाता है तो आप कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और कहीं ई बी लेस देन ई ए आ जाता है तो आप इसे कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि आप लीनियर और नॉन लीनियर डिमांड कर्व के लिए सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। सो we have completed with the topic, students. Please go through it twice to understand the concept clearly. Thank you.